how to find your true self and your true purpose of life. Hi beautiful souls, this is Ritika. Welcome to my channel. Now, in the last video I mentioned that I will bring out another video where I will guide you how to find yourself. अपने आप को कैसे ढूंढ के निकालना है, अपनी लाइफ की ट्रू पर्पस को कैसे ढूंढ के निकालनी है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, why you are struggling to find yourself, क्यों आप इतनी स्ट्रगल करते हो अपने आप को ढूंढने में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट. पर आज हम बात करेंगे how to find yourself. So when you cannot find yourself, you actually fall in the pit hole of anxiety, depression, addiction and overall a mental poor health. Okay? तो इसीलिए अपने आप को ढूंढ के निकालना बहुत जरूरी होता है. जो पैटर्न्स हमारे हैं, जो पैटर्न्स हमको अपने आप को ढूंढने में रोकता है, उसको ब्रेक करना जरूरी है. और कैसे करना है ये मैं बताऊंगी आज इस वीडियो में. लेट्स बिगिन विथ पॉइंट नंबर 1 ऑन हाउ टू फाइंड योरसेल्फ. Forgive your parents, forgive your childhood caregivers, forgive those dysfunctional family members who has caused wounds and trauma in your heart and mind. The very first step of any cure to anything, even cancer, is forgiveness. Forgiveness is that medicine that if somebody truly incorporate in their life, if they're facing any kind of problem, forgiveness is a brahmastra. That's right. So forgive your parents. Forgive them for whatever they have done in your childhood. Truly forgive them. Just acknowledge that whatever happened to me, whatever I faced in the childhood, whatever I'm facing today, it's because of my own karma. I have come down with a karmic account balance. And I was supposed to born in this family because when you were a soul, you have chosen your father, your mother, your family lineage, everything. So that was your conscious choice when you were a soul. You came here because you want to clear your karma. We only choose those places where we can clear our karma. So since consciously you have chosen that which you have forgotten completely after coming to earth, so whatever your parents have done, your forgiveness will give you the healing capacity in your heart, in your mind and your soul. The moment you forgive your parents, that mom, dad or whoever was your caregiver in your childhood days, I'm really sorry, I forgive you all. I forgive all the trauma that I have in my heart for whatever action you have done in my childhood. I truly forgive you. We all are beautiful souls. You're my mama, papa. I have forgiven you. Thank you so much that you actually given me the chance to come to the earth. Through you I came on earth to clean my karma. That's it. Just forgive them and at the same time seek forgiveness from them in your heart. You don't have to go anywhere. You don't have to go to your father and mother and say forgive me. You can put your hand in your heart like this, in your heart chakra, and say, I'm sorry. Whatever I have done in this lifetime with you, whatever I have done in some other lifetime with you, please forgive me. Just do it for at least 21 days every day before going to sleep. You will see the magic, and do it with full intention. Do it with positivity. Just करने के लिए मत करो. Do it with full intention. Why you need to forgive your parents or your caregivers? Because in order to find yourself, you first have to heal your deepest wounds. And most of our wounds have come from our childhood traumas, which we don't even realize are childhood traumas. At some point, we don't even understand why things are so falling apart. So in order to bring things together, in order to heal yourself and find yourself, you will have to forgive your childhood people. Number 2, start accepting your body, however it is, your face, however it is. Yes, your non-acceptance of your own body, your own looks, the flaws that you have, accept it. Yes, I have. For some reason I have. मैं पतली हूँ, मैं मोटी हूँ, मेरे थोड़े बाल कम है, थोड़े पिंपल्स आ रहे हैं, है. एक्सेप्ट करो पहले अपने आप को. कभी कभी खुद को ढूंढने के लिए पहले आप जो हो उस चीज को पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं थोड़ी ज्यादा बात कर ही लेती हूँ,
हूँ मैं ऐसी थोड़ी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप बहुत बात करते हो या फिर चुप रहते हो, लोग आपको शेम करते हैं कि देखो ये तो चुपचाप सी रहती है, कोई बात ही नहीं, ये मुंह से तो बात ही नहीं निकलती। या फिर आप बहुत, अरे ये तो बहुत मतलब बहुत बोलती है। इन बंगाली वी से बाचाल, यू नो, पीपल हु स्पीक अ लॉट। सो पेरेंट्स या फिर कभी कभी रिलेटिव्स भी बोलते रहते कि ऐसी है वैसी है, तो हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अच्छा हम ऐसे करते हैं। तो अपने अपने क्वालिटीज को एक्सेप्ट करो, अपनी लुक्स को, अपनी बॉडी को पहले एक्सेप्ट करो, अगर अपने आप को ढूंढ के निकालना है। ये दोनों चीजें करो, देखो फर्क दिखेगा। अब बात करेंगे थर्ड चीज के बारे में, जिससे आप अपने आप को ढूंढ पाओगे। रीइन्वेंट योरसेल्फ बाय एम्ब्रेसिंग सॉलिट्यूड। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर आप किसी ब्रेकअप से जा रहे हो, अगर आपके पार्टनर आपको ज्यादा टाइम नहीं देता है, आजकल की तो सबका प्रॉब्लम, वो सॉलिट्यूड में, उस सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करो, क्योंकि वो ही सॉलिट्यूड आपको चांसेस दे रहा है लाइफ में अपने आप को रीइन्वेंट करने के लिए, अपने आप को ढूंढ के निकालने के लिए, टू फाइंड योरसेल्फ, योर ट्रू सेल्फ। तो मैं हर एक वीडियो में ये भी बताती हूँ कि हर एक प्रॉब्लम जो होता है नो, दैट इज गिविंग यू एन इंडिकेशन टू डू समथिंग गुड फॉर योरसेल्फ। तो ये जो ब्रेकअप फ्रेज जा रहा है, या फिर ये नो सेपरेशन, या फिर नो कॉन्टैक्ट, या फिर नो मतलब यू नो यू आर सो डिटैच्ड विद समबडी और समबडी इज सो डिटैच्ड विद यू, या फिर पेरेंट्स से थोड़े दूर हो, ये लोनलीनेस को ना, वो मतलब वो लम्हे, वो बातें, ये सारे गाने सुन के मत निकालो, वो सैड वाली सॉन्ग मत सुनो, अपने आप को इन्वेंट करो। अब तुम क्या थे, तुमको अपनी चाइल्डहुड में क्या पसंद था, तुमको क्या बनना था जिंदगी में, तुमको कौन सी गाने अच्छे लगते थे, कौन सी, जब बच्चे थे, यू नो। क्योंकि चाइल्डहुड से अगर हम इस चीज को निकाल के लाएंगे ना, तो हम बहुत प्योर चीज इन्वेंट कर पाएंगे अपने आप के बारे में। हम जब थोड़ा ग्रोन अप हो जाते हैं ना, तो चीज़ बहुत मिलावट हो जाती है, क्योंकि माइंड एंड ईगो का ये क्लैश चलता रहता है। तो उस टाइम आप नहीं कर पाते हो। तो अपनी चाइल्डहुड टाइम की मेमोरीज को वापस लाओ। आपको क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद, आपको क्या करना था लाइफ में। आप बहुत अच्छा पेंटिंग करते थे, आज कॉर्पोरेट में फंसे हो। आपको बहुत अच्छा बिजनेस स्किल्स था, आप कॉर्पोरेट में फंसे हो, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में फंसे हो, या फिर कहीं पे भी हो। रीइन्वेंट करो। आप अपने आप को कैसे सोचते थे जब हम बच्चे थे ना, तब हम क्या करते थे, हम जब एक टॉवल लेके ऐसे बालों पे ना लगा के हम लोग बाल बना देते, देखो कितनी लंबी घनी बाल है हमारी। तो हम कितनी क्यूट सी काम करते रहते ना जब हम बच्चे थे। तो वो बहुत इनोसेंट एंड बहुत प्योर काम हो जाता। तो ऐसे ही अपने आप को निकालो, जर्नलिंग करके निकालो कि मेरी ट्रू पर्पस क्या थी, मैं क्या सोची थी लाइफ में बनूंगी। देखना आप अपने आप को कितना ज्यादा इन्वेंट कर पाओगे, क्योंकि आप उस सॉलिट्यूड के पीरियड में अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो। और यूनिवर्स तो वही करता है, यूनिवर्स आपको मौका देता है। हम बुद्धू लोग हैं ना, हमको समझ में नहीं आता है ये क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया। सेपरेशन इज अ टाइम व्हेन यू एक्चुअली कैन हील योरसेल्फ, एम्ब्रेस योर सॉलिट्यूड टू फाइंड योरसेल्फ। 4, अंडरस्टैंड दैट फियर इज अ इल्यूजन, so you have to let it go if you want to find yourself. Fear कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। एक कोई मतलब छोटा सा पत्थर भी नहीं है वो। जैसे हमारे दिमाग में एक है कुछ फियर, ये नहीं तो हो जाएगा, वो नहीं तो हो जाएगा, हमारे दिमाग से ही जनरेट होता है सिचुएशन सर्कमस्टेंस को देख के। उस इनविजिबल चीज को अपनी जिंदगी से ना बस निकाल दो। जैसे फियर को निकाल दोगे, हाँ होगा होगा, सो व्हाट, होने दो। ऐसा हो सकता है, हो सकता है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे ही तुम अपनी किसी भी फियरफुल सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करना स्टार्ट करोगी, अरे मैं फेल होगी तो होगी, फिर से ट्राई करूंगी, आपके अंदर ये जो यहाँ पे जो फियर जनरेट होगा ना, उसके बाद वो तुरंत खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे फियर भागेगा। फियर कम्स फ्रॉम आवर ईगो सेल्फ विच लव कंफर्ट जोन, जिसको आपको हमेशा पुल बैक करके रखना पसंद होता है। ये हमारी खुद की ही सेल्फ होती है। तो इस चीज से लड़ो, फियर को लेट गो करो, अपने आप को बहुत जल्दी ढूंढ पाओगे, डिस्कवर कर पाओगे नई तरीके से। आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दो,
इट मीन्स अ लॉट टू मी, इट मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, डू सब्सक्राइब। मैं पोस्ट करती हूँ मंडे टू फ्राइडे कुछ ना कुछ वीडियो, आपको जरूर काम लगेगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि मेरा ये चैनल ना हर एज ग्रुप, हर इंसान के लिए है। 5, डोंट लेट एनीवन to enter in your mental peace space। जहां पे और या जिस चीज पे आपकी मेंटल पीस आती है ना, उस चीज पे किसी इंसान को घुसने मत दो। जो चीज आपको मेंटल पीस देता है, आप शांत रहते हो, खुश रहते हो, खुश भी नहीं, लेकिन आप पीसफुल रहते हो, शांति रहती है, उस स्पेस में किसी को एंट्री मत दो। जैसे आपका एक टाइम है सारा दिन में, आप एक किसी टाइम बैठ के मेडिटेशन करते हो या फिर अपने आप में चिल करते हो, डोंट एंटरटेन अ सिंगल फोन कॉल या फिर टेक्स्ट। दैट्स योर मेंटल पीस टाइम। बिकॉज उस मेंटल पीस के टाइम पे ना अपने आप से बातें करो, अपने आप को इन्वेंट करो, अपने आप से पूछो क्या चाहिए, क्या करना चाहती थी, क्या हूं मैं, किस लिए आई हूं दुनिया में। वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेंटल पीस के टाइम पे किसी को एंट्री मत दो। नंबर 6, चैलेंज योरसेल्फ डेली। लिटरली डेली अपने आप को चैलेंज करो। जो चीज को लेके प्रोक्रास्टिनेट करते हो, जो चीज तुमको बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाती है ना, उस चीज को चैलेंज करो। अरे तुम हो क्यों? जो चीज तुमको अनकंफर्टेबल फील करवाती है ना, हर दिन जो चीज को लेकर तुम बाद में करेंगे, जिस चीज को लेकर फियर है, उसको चैलेंज करो। क्यों हो तुम फियर? क्यों मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूँ? चैलेंज दोस्त। जैसे चैलेंज करोगे ना, ट्रू सेल्फ पे आना स्टार्ट कर दोगे। नंबर 7, टेक फीडबैक फ्रॉम पीपल। जो बहुत तुम्हारे क्लोज इंसान जो है ना, जो लोग तुमको लगता है कि ये लोग एनर्जी टेकर नहीं, एनर्जी गिवर है, या फिर जो तुम्हारे शुभ चिंतक, हु थिंक्स वेल विशर्स, उनसे अपनी फीडबैक मांगो कि तुमको क्या लगता है मैं कैसी हूँ। एज अ फ्रेंड, जिसके साथ जो भी रिलेशनशिप है, उनके साथ एक फीडबैक लो, अपने आप की फीडबैक। उनसे जाके पूछो कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड आई चेंज अबाउट माई सेल्फ सो दैट आई कैन डू बेटर इन माई जॉब, इन माई लाइफ, इन माई करियर। या फिर उनसे पूछो कि तुमको क्या लगता है कि मेरे अंदर ऐसे क्या क्या पैटर्न्स है, या फिर मैं ऐसे क्या क्या रिएक्शंस देती हूँ जो तुमको पसंद नहीं होता लेकिन तुम कभी बोलते नहीं हो। इस तरह का फीडबैक उनसे लो अपने बारे में। जैसे तुम इनसे फीडबैक लेना स्टार्ट करोगे ना, तुम देखोगे कितना सेल्फ करेक्शन की पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी कि हाँ चलो, दिस पीपल आर सो क्लोज टू मी येट दे नेवर सेड दीज आर द फॉल्ट्स बिकॉज आई नेवर आस्क्ड। सो कीप आस्किंग देम एंड start working on self-improvement by taking feedback from your near and dear ones. And this will help you to find yourself. Number 8, in order to find yourself, which is a mental game, it is also important to find yourself physically, and for which live a healthy lifestyle. Eat good food, go for gym and workout or yoga, walking, whatever, move your body, shake your body. Okay, go for good sleep, have good amount of water every day, meditate करो। एंजाइटी डिप्रेशन आ रहा है तो, अटैक्स आ रहे हैं तो थोड़ा फटाक से बाहर चले जाओ, थोड़ा पेड़ के नीचे या फिर ऐसे रास्ते पे वॉक करो, या फिर घर पे पेड़ पौधा है तो उनसे बातें करो। हेल्दी लाइफस्टाइल जीने से जो स्टक एनर्जीज हमारे अंदर होती है वो निकल जाती है तुरंत। और ये जब प्रैक्टिस करोगे डे आफ्टर डे, एटलीस्ट 45 डेज तक प्रैक्टिस करोगे, देखना स्टक एनर्जी निकल जाएगी, दिमाग क्लियर हो जाएगा। हेल्दी खाना खाओगे, हेल्दी लाइफस्टाइल करोगे, दिमाग क्लियर होगा तो तुम अपने आप को ढूंढ पाओगे, हर आंसर ढूंढ पाओगे। बस ये स्टक एनर्जीज को निकालना है, इसीलिए तो हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। Let's move on to the last point, but before that, let me remind you, you can check out my travel channel, Wanderlust Vlog by Ritika. I'm a travel vlogger. I've been vlogging for last 8 years. You will find my content really entertaining, soothing, and informative. So do check it out, and if you like those content, do subscribe. Okay, last but not least, number 8. In order to find yourself, start enjoying little things in life. The morning coffee, a good sleep, a good book, maybe a cuddle with your pet, maybe watering your plants. छोटे से छोटे एक पार्सल आ जाए, खुश हो जाना। किसी और के लिए भी पार्सल आता है ना घर में, खुश हो जाना। छोटे छोटे चीजों में खुशी ढूंढना स्टार्ट करो।
ये जो इतनी वुंड्स, इतनी ट्रॉमा जो भी है ना, ये चले जाएंगे, लेकिन तब जाएंगे। दीज आर बिग थिंग्स। स्मॉलर चीजों से स्टार्ट करो, छोटे छोटे चीज़ों में ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच इतनी सुंदर एक घर देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतनी सुंदर एक बेड पे मैं रात को सो पाती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल जॉब दैट आई हैव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स दैट आई एम स्टिल अलाइव यार। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स को यार बोल के बुला सकते हो, कोई बात नहीं। थैंक यू यार, अभी भी जिंदा हूँ, हॉस्पिटल में तो नहीं हूँ ना, मुंह पे तो ऑक्सीजन का मास्क तो नहीं लगा हुआ है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग मी सो हेल्दी। I know there are so many mental problems, but still I'm healthy, still I'm good. यही कुछ नहीं है ना, तो यही है ग्रैटिट्यूड देने के लिए, और इसमें भी खुश रह सकते हो कि जिंदा हूं, जिंदा हूं। तो ये सारे चीजें, जितनी भी चीजें मैंने बताया आप लोगों को, फिर से वीडियो को देखो, नोट डाउन कर लो, 45 डेज तक करो। अपने आप को खुद ढूंढ पाओगे, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, व्हाटएवर कॉन्शियसली, यू विल बी एबल टू फाइंड योरसेल्फ एंड यू विल कम बैक टू माय वीडियो एंड यू विल थैंक मी लेटर। ये था आज का वीडियो। डू लीव अ कमेंट बिलो योर फीडबैक इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, व्हाटएवर। एंड इसका पार्ट 1 देख लेना, जहाँ पे मैंने बताया कि क्यों आप स्ट्रगल करते हो। किसी आंसर को पहले जानने से पहले बीमारी क्यों हुई थी वो जानना जरूरी है। उसका पार्ट 1 है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल। बाय बाय।